कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी दोहराइए। हरे हरे कृष्णा एवरीवन, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, from your heart, राम राम हरे हरे। we are praying for the departed souls, and we wish Radha Govindji bestow their blessings on all of them. So please chant from your heart. Music is immaterial, but offer your prayers and feelingly chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Everyone, Hare कृष्णा हरे कृष्णा Thank you, loudly. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Please, Hare कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Hare. Everyone, Hare Krishna, Hare Krishna, from your heart, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे Jai Radha Govinda Radha Govinda Hare. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा Jai जय Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा Jai जय Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaur Hari. Jai Gauranga, Jai Gauranga, Gaur Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaur Hari. Jai Gauranga, Jai Gauranga, Jai Gauranga. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari. श्री राधा वल्लभ भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय श्री श्री निताय गौरांग की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. इको जीरो कर दो। हरे हरे कृष्णा। Hare. तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सारे मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस से इवन आउटसाइड कैलकाटा ऑल्सो आज यहाँ पर आए हैं सब कोई। तो हम लोग बहुत आभारी हैं आपके, क्योंकि आज हम लोग विशेष एक प्रोग्राम रखे हैं आप सबका, क्योंकि पिछले कुछ महीनों पहले हम लोगों ने एक क्विज करवाया था आप लोगों का, राइट? কিভাবে তোমরা সবাই কানেক্টেড হয়েছিল মনে আছে? একটা আমরা কোর্স করিয়েছিলাম, হ্যাঁ, গীতা মেড ইজি ফর ডক্টরস। তো সেই কোর্সের আজকে আজকে আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনও করব। তো যেহেতু আমরা আজকে বিশেষ অনুষ্ঠান একটা করেছি, একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছি, তার সাথে আমাদের একটা স্পেশাল স্পিকারও এসেছেন। হরি বল। তো মহারাজ প্রভু আমাদের মন্দিরেরই नहीं आ रहा नहीं यहाँ पे है, माइक नहीं है, माइक छोड़ दो। তো মহারাজ প্রভু আমাদের মন্দিরের একজন খুব সিনিয়র, হরে কৃষ্ণ। তো হিজ গ্রেস মহারাজ প্রভু আমাদের মন্দিরের খুব সিনিয়র ব্রহ্মচারীদের মধ্যে এক আছেন। তো 2008 সালে উনি আইআইটি খড়গপুর থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি বিটেক ডিগ্রি দুটোই কমপ্লিট করেছেন। তারপর উনি 2009 সালে আমাদের ইসকন মন্দিরে, কারণ তার মাঝে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে উনি জব করলেন। তারপরে 2009 সাল থেকে উনি আমাদের মন্দিরে ব্রহ্মচারী আছেন। তো আমার থেকে অনেক সিনিয়র, আমি অনেক পরে জয়েন করেছি। हरे कृष्ण। उसका लगता है बैटरी इशू, ठीक है। तो मैं 2009 में प्रभु जी 2009 में ज्वाइन किए। तो इसके साथ साथ जब से वो कॉलेज से कनेक्टेड थे, तो तभी से आईआईटी खड़गपुर, देन
आसनसोल का जो कॉलेज है, एनआईटी एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी दुर्गापुर, देन एचआईटी हल्दिया और आईआईटी धनबाद, ये सारे जगहों पे उन्होंने यूथ प्रीचिंग की है। तो हमेशा से वो यूथ को हमेशा से कल्टीवेट किए हैं। तो he has यूथ इज द पावर, हरि बोल। हरे कृष्ण। और इनफैक्ट मैं जब से मंदिर में हूँ, मैं 2-3 मेरे सीनियर्स हैं तो मैं जिनको एडमायर करता हूँ, तो 3 प्रभु जी हैं जो हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। हिज ग्रेस गौरांग स्मरण प्रभु, हिज ग्रेस महाराज प्रभु और हिज ग्रेस अनंत गौर सुंदर प्रभु। तो ये तीनों आईआईटी से ही फ्रेंड रहे हैं। तो मेरे हमेशा मतलब मैं जब भी उनको जप करते हुए देखता था, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। हम लोग इसी मंदिर में ज्वाइन किए थे, तो यही वाला हमारा पेरेंट टेम्पल है। बट चूंकि अभी प्रचार बढ़ गया है, तो अभी धीरे धीरे कलकत्ता में और भी बहुत सारे मंदिर आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी लाइक 7-8 सेंटर्स टेम्पल्स हो चुके हैं कलकत्ता में, सब कुछ छोटे बड़े टेम्पल मिला के 6-7-8 अभी हो चुके हैं कलकत्ता में। तो आई एम फ्रॉम इस्कॉन न्यू टाउन, प्रभु जी इज ऑल्सो नाउ इन इस्कॉन न्यू टाउन। तो पास में एक भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर है। तो पुराने जितने भी ग्रंथ हैं हमारे आचार्यों के लिखे हुए, नरोत्तम दास ठाकुर या फिर भक्ति विनोद ठाकुर या फिर जितने भी शास्त्र हैं, हरे कृष्ण उधर देखो ऑन करें, तो जितने भी शास्त्र हैं तो वहां पर आपको पर्सनली उनके ओरिजिनल कॉपी वहां पे मिल जाएंगे। इवन चैतन्य महाप्रभु का हैंडराइटिंग भी उस जगह पे है। तो प्रभु जी उसी जगह पे रहते हैं, उनका उस जगह का उस बिल्डिंग का इंचार्ज है वहां पे। तो भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर। तो साथ ही साथ उन्होंने, बिकॉज ही हैज अ इंटरेस्ट इन शास्त्रस, तो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव कोर्स, साथ में वो खुद भी भागवतम के ऊपर बहुत हायर स्टडीज कर रहे हैं, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये सारे कुछ कुछ कोर्सेस होते हैं, तो जिसको हम लोग फिर आगे पढ़ाते भी हैं। तो प्रभु जी एज अ टीचर इन MIHE, मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे हम लोगों का क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, राइट। उसी तरह से इस्कॉन में भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम लोग हायर स्टडीज करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे ग्रंथ, तो बहुत डिटेल में पढ़ाई की जाती है। तो प्रभु जी इज अ टीचर। तो आज हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी यहाँ पे आए हैं और प्रभु जी ने कीर्तन किया, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा से चैंटिंग में उनकी हमेशा रुचि रही है। तो जब हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं किसी के लिए भी, तो वो प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं और उस व्यक्ति के लिए भी वो प्रार्थनाएं काम आती है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रेयर सिर्फ हम अपने लिए कर सकते हैं, वी कैन प्रे फॉर अदर्स ऑल्सो। तो इस चीज के साथ मैं अभी निवेदन करूंगा प्रभु जी से कि आज जो भी स्पेशल सेशन है, प्रभु जी हम सबका, हमारी चक्षुदान, हमें हमारे ट्रांसेंडेंटल आईज हमारे ओपन करें प्रभु जी। ओवर टू यू प्रभु, हरे कृष्ण। इसका मैं वर्क्स तो डजंट वर्क। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा जोर से मैं देख रहा हूँ सर ऑपरेट क्या करें। हरे कृष्ण, एम आई ऑडिबल? हरे कृष्ण। देखो, आमी भालो रकम बांग्ला बोलते पारी ना, किंतु हिंदी अंग्रेजी। So when Prabhu was introducing me, I was remembering one small story. There was one scientist and he had to cross one river. को नदी पार करना था। So he hired one boat and both boatmen and the scientists were in the boat. So it was a long journey. So this scientist asked the boatman कि तुम्ही किछु हाइड्रोडायनामिक्स जानो कि, आपको कुछ हाइड्रोडायनामिक्स आता है क्या? So boatman said, what hydrodynamics? What is that? चावल के साथ खाते हैं या दाल के साथ खाते हैं? हाइड्रोडायनामिक्स होता है क्या? तो बोट थोड़ा और आगे चली। तो अब साइंटिस्ट ने पूछा कि अच्छा तुम्हें थोड़ा बहुत कैलकुलस तो आता होगा? कैलकुलस इज ओनली अ टूल, बेसिक। कहते क्या कोकुलस, कोकुलस का की होबे? मैं जानी ना, नहीं जानता मैं। तो बोट थोड़ा और आगे चली। तो फिर उसने पूछा अरे तुम्हें थोड़ी इंग्लिश ग्रामर तो आती होगी? कहता अंगूठा छाप में सर, किच्छु आई ना, कुछ नहीं आता। तो बोट थोड़ा और आगे चली। तो कहता है कि अरे, हरे कृष्ण, अभी आइए आप लोग ऐसे ऐसे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो जब सबसे पहले बोटमैन ने, साइंटिस्ट ने पूछा कि तुम्हें हाइड्रोडायनामिक्स आता है, तो उसने कहा नहीं आता।
तो साइंटिस्ट ने कहा तुम्हारी 25% लाइफ वेस्ट हो गई। कितना परसेंट? 25%। उसके बाद बोर्ड थोड़ा आगे चली तो उसने पूछा, दूसरा क्या पूछा था, कैलकुलस आता है क्या? तो बोटमैन ने क्या कहा, नहीं आता। कहते तुम्हारी 50% लाइफ वेस्ट हो गई, कैलकुलस भी नहीं आता है। हायर मैथमेटिक्स तो कैलकुलस से ही होता है। तो फिर अभी जब और आगे बढ़ा तो उसने पूछा कि तुम्हें इंग्लिश ग्रामर आता है क्या? कहते नहीं आता। तो तुम्हारी 75% लाइफ वेस्ट हो गई। इंग्लिश ग्रामर तो आना चाहिए कुछ बेसिक। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देयर वाज थंडर स्टॉर्म और पूरा आकाश में बादल छा गए। ऐसे करके बादलों की आवाज आने लगी। तो साइंटिस्ट ने बोटमैन से पूछा ये क्या हो रहा है? बोला है बहुत तेज बारिश होने वाली है और तूफान आने वाला है, तुम्हें तैरना आता है क्या? बोटमैन ने साइंटिस्ट से पूछा तुम्हें तैरना आता है क्या? कहता नहीं। कहता तुम्हारी 100% लाइफ वेस्ट हो गई। तो तो मुझे मेरे बारे में बता रहे थे, आईआईटी, बीटेक, एमबीबीएस क्या क्या होता है। दैट्स गुड इफ वी कैन यूज इट इन गॉड सर्विस। थैंक यू। बहुत अच्छा है अगर हम उसे भगवान की सेवा में लगा सकें तो, बट अदरवाइज लाइफ विदाउट भक्ति, विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइफ वेस्ट हो गई 100%, है ना? तो आज हम एक बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताने वाले हैं, द सन ऑफ बंगाल एंड द हार्ट ऑफ कोलकाता। कैन यू गेस हु? जोर से बोलो। शिला प्रभुपाद की जय। यस, शिला प्रभुपाद जी के बारे में बताने वाले। आप प्रभुपाद के बारे में क्या जानते हैं, पहले मैं आपसे पूछता हूँ। आपने की जाने? यस, वेरी गुड, थैंक यू। थ्रू आउट द वर्ल्ड, हरि बोल। एनीथिंग एल्स? और क्या किया प्रभुपाद ने? अच्छा, उनका बर्थ कहाँ हुआ था? कोलकाता में। वेरी गुड। और बस इतना ही जानते हैं ना? आज मैं आपको प्रभुपाद के एक बहुत स्पेशल फीचर बताने वाला हूँ कि हाउ he was not any ordinary human being. He was sent by Shri Shri Radha Govind ji themselves, and I'll prove it today. ठीक है? So we'll start with the. Okay, I can share the screen here. ऐसे ही ना? तो फुल स्क्रीन कर दो. So we'll show you one special video clip after this small discussion. देखो, अगर कोई आपके पास आता है, बोलता है कि मैं भगवान हूं, आई एम गॉड, कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो गॉड है या नहीं है? बोलो. Any way to verify? Suppose मैं कहता हूँ आई एम गॉड, then how will you challenge my assertion? बताओ. Will you believe? Will you accept I am God? स्वीकार कर लेंगे? नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अरे लेट्स बी इंटरैक्टिव. कुछ अननेचुरल प्रमाण चाहिए. यस, वेरी गुड. वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट प्रूफ, है ना? तो हम तो अपने लेबोरेटरी में भी एक एक्सपेरिमेंट को 5 बार करके एवरेज निकालते हैं. एक रीडिंग में बिलीव नहीं करते, राइट? 5 रीडिंग आगे उसका एवरेज, मीडियन, मीन निकाल के तब मानते हैं दिस इज द वैल्यू, इजंट इट? एक बार हम वो कर रहे थे, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 9.8. तो एक लड़के का वो पेंडुलम से करते हैं ना, ऐसे करके, तो उसका आ गया वैल्यू 16. तो दूसरे ने कहा अरे तूने कुछ गलत किया होगा, ये तो 9.8 ही होना चाहिए. तो कहता है नहीं सर, मैं तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक ठाक किया, ये तो 16 ही आ रहा है. कहता है अरे तू क्या न्यूटन से भी बढ़ के हो गया, चल दोबारा कर सब कुछ. तो ऐसा होता है, वी बिलीव इन एविडेंस, प्रूफ. वैसे ही कोई बोलेगा आई एम गॉड, तो शो मी एविडेंस, है ना?
तो एक एविडेंस होता है कि जो भगवान जब भी आते हैं उनका प्रिडिक्शन दिया होता है पहले से, ही इज गोइंग टू अपीयर, ही इज गोइंग टू कम, वो आने वाले हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, है ना। तो भगवान का भी ऐसे दिया होता है कि कौन है वो। तो आज हम देखेंगे शिला प्रभुपाद जी के बारे में प्रिडिक्शन। सो कैन समवन रीड, कोई पढ़ो। अंकित, यू कैन यू रीड। A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, was instrumental in distributing the priceless treasure of Vedic knowledge to the whole world in the modern time. तो आज हम बताने वाले हैं कि हाउ ही इज नॉट जस्ट अ सेंट बट एन एम्बेसडर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप एम्बेसडर जानते हैं ना, राजदूत, क्या वो जयशंकर, एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, वेरी पॉपुलर फॉर हिज विटी आंसर्स। वैसे शिला प्रभुपाद जी कहाँ के एम्बेसडर हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। तो उसके प्रूफ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कैन एनीवन रीड दिस? दिस इज इन तेलुगु, तमिल। इवन आई कैनॉट रीड दिस। एनी तमिल हियर? कोई तमिल? नहीं ना, इतना दूर नहीं आते हैं तमिलनाडु के लोग ना। बट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अपने पास। तो वो तमिल में लिखा हुआ है, दिस इज अ स्क्रिप्ट रिटन 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले तमिल में ये लिखा गया था। इसमें लिखा हुआ है, इसका नाम है तिरुवयमोली दिव्य प्रबंध। और इसमें लिखा हुआ है पोड़ेगा पोड़ेगा पोड़ेगा, बोलिए। आपको तमिल सिखा रहे हैं। पोयित्रु वल्लुयिर चप्पम नल्लियुम नरगमुम नैंद नमनुकुंगिगु यादुन यदुन यदुन रूम इल्लई। मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत सिंपल है। उसमें लिखा है, एनीवन वांट्स टू रीड? टंग ट्विस्टर्स। Here is something wonderful. All the inauspiciousness of the living entities is destroyed. No one is going to hell. Yamaraj has no more any more, and the effects of the Kali Yuga ceased to exist. This is because all over the world, an increasing number of Lord Vishnu's devotees since his names while dancing and playing musical instruments. ये किसने किया? शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे, एक भी कृष्ण भक्त नहीं था। कितने कृष्ण भक्त थे? शून्य, जीरो। लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद वेस्टर्न लोग धोती पहनकर, माताजी लोग साड़ी पहनकर, मृदंगा करताल लेकर गली में संकीर्तन कर, दिस इज पिक्चर फ्रॉम इटली। तो कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये फर्स्ट टाइम किसने पॉसिबल किया? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, उन्होंने किया। तो इसका प्रिडिक्शन 2000 साल पहले हो गया था। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, आपको शायद इसमें विश्वास ना हो। एक ऐसे हरिनाम संकीर्तन रशिया में भी निकलता है। तो इंडिया के बाद सबसे ज्यादा कृष्ण भक्त इंडिया के बाद रशिया में है। तो हम ऐसे कृष्ण भक्त ऐसे कीर्तन निकालते हैं, हरिनाम संकीर्तन। तो एक लड़का था 20-22 साल का, आपकी उम्र का ही होगा। तो वो उनको देखकर ना बड़ा गुस्सा होता था, गाली बकता था थोड़ा डिस्टेंस से। लेकिन जैसे कि वो कीर्तन करते जा रहे हैं और ये बोलेगा तो उसे, अब भूतनी के सुअर की औलाद, ऐसा करके। तो उसको पसंद नहीं आते थे कृष्ण भक्त, लेकिन वो दूर से बोलता था तो सुनाई नहीं देता था। और भक्तों को लगता था कि बड़ा खुश हो रहा है वो हमें देख के। तो भक्त लोग भी कहते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो वो भी आगे से हैंड वेव करके स्माइल कर देता था। ऐसा हुआ। और क्या हुआ, एक दिन उस लड़की की अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो दिस इज अ रियल स्टोरी, रियल स्टोरी। उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और उसकी भेंट हुई मिस्टर यमराज। यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा, बताओ भाई इसने कुछ अच्छा काम किया है क्या? उसने बोला नहीं, तो इसने सबके सब पाप ही किए हैं। तो नरक ही भेज रहा है। तो देयर आर 28 टाइप्स ऑफ हेल गिवन इन श्रीमद् भागवतम। तो कहते नहीं, यमराज जी भी बहुत दयालु है, ही इज कृष्ण भक्त बाय द वे, यू नो दैट। अगर आप कभी यमराज के पास चले जाएं, वैसे आप जाएंगे नहीं
क्योंकि आज आपकी टिकट कैंसिल कर दी हमने। आपने कीर्तन में भाग लिया, अब आप कभी यमदूतों को यमराज को नहीं देखेंगे, सॉरी। लेकिन अगर आप कहीं गए गलती से या कोई और गया तो उसको आप यमराज को क्या बोलना है आपको? हरे कृष्णा। बस, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपको वापस भेज देंगे। तो उन्होंने यमराज ने पूछा कि भाई देखो कुछ तो अच्छा किया होगा इसने। तो चित्रगुप्त ने बोला कि इसने ना हरे कृष्णा भक्तों को थोड़ा सा आनंद दिया, ही गेव देम सम प्लेजर। तो यमराज जी ने बोला कितनी बार? बोला 27 टाइम्स। नाउ यमराज जी लुक एट दिस बॉय, बता तेरे को वापस भेज दूं तो क्या करेगा? अब तक वो बहुत डर गया था, क्योंकि किसी को कुंभीपाक नरक भेजा जा रहा था, किसी को अंधता मिश्र, किसी को ये नरक, किसी को वो नरक। तो वो भी देख के घबरा गया था, भाई यहाँ पे मामला गड़बड़ है। उसकी पतलून गीली हो चुकी थी। तो बोला हाथ जोड़ के, सर मुझे वापस भेज दोगे ना, मैं हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन कर लूंगा, मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा, मुझे जाने दो। तो महाराज जी ने कहा जा। आज वो प्रभु जी मॉस्को की सड़कों पे शिला प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हरी वो उन्होंने खुद ही अपनी स्टोरी बताई। जस्ट हरे कृष्णा भक्तों को 27 टाइम्स। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। मतलब he didn't die, he died, he left his body but again entered his body. मरे नहीं, मतलब he left his body, he was medically dead but then returned back to his body and now he is a fully dedicated Krishna Bhakta in state of Moscow. तो ये prediction, it's not some imagination. You can see taste of pudding is in eating. आप देख सकते हैं कितने कृष्ण भक्त हैं। तो ये किसने पूरा किया, किसने फुलफिल किया? शिला प्रभुपाद जी ने, है ना। अब ये प्रिडिक्शन है 5000 ईयर्स अगो, और पीछे जा रहे हैं। अभी तो 2000 ईयर्स का पहले का बताया था, अभी 5000 ईयर्स का पहले जा रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, हाँ, और उसमें वो बोलते हैं कि ये जो गंगा जी हैं, जो हमारे कलकत्ता से भी आती हैं, जाह्नवी, वो भगवान कृष्ण को ये प्रार्थना कर रही हैं। तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, हे नाथ रमण श्रेष्ठ यासी गोलोक्रमुत्तमम् अस्माकं का गतिश्चात्र भविष्यति कलौ युगे। तो वो कह रही हैं कि हे रमण श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ का मतलब है बेस्ट ऑफ द लवर्स, आप तो चले जाएंगे गोलोक। सो बाय द वे कृष्णा वेंट टू हिज अबोर्ड, कृष्णा गोलोक कब गए? 5000 साल पहले। लेकिन अस्माकम का गतिश्चात्र, उसके बाद हमारी क्या गति होगी? क्यों क्यों बोल रही है गंगा जी ऐसे? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जो पापी लोग हैं वो हमारे अंदर सब पाप छोड़ के चले जाएंगे, तो हमारी क्या गति होगी? अस्माकम का गतिशास्त्र भविष्यति कलयुगे। अब कलयुग में तो लोगों को ना शास्त्र पता होंगे, ना यम ना नियम, पापी पाप करते रहेंगे और हमारे अंदर आके स्नान करेंगे, सारे पाप हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ना, है ना। तो ये ट्रांसलेशन है भगीरथी उवाच। भगीरथी मतलब गंगा। हे नाथ रमण श्रेष्ठ यसी गोलोकम उत्तमम अस्माकम का गतिश्चात्र भविष्यति कलौ। somebody read please English translation. छोटा है अभी। Then he said, "O Lord, best of luck, now that you are going to the supreme goal, Golok. what will be our situation here in this age of Kali?" यस, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो पहले से उनको पता है कलयुग में क्या होने वाला है, तो अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, भगवान कृष्ण क्या कहने वाले हैं? चलो आप पढ़ते हैं। कले पंच सहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः मन्त्रोपासक स्पर्शात् भस्मीभूतानि तत्क्षणात् भविष्यन्ति दर्शनांश्च स्नानादेव हि जाह्नवी।
तो आपको क्या नोट करना है यहाँ पर, पंच सहस्त्राणी, पंच का मतलब क्या होता है, सहस्त्र का मतलब क्या होता है, 1000, है ना, तो 5000 ईयर्स। तो यू नो व्हेन कृष्णा डिसअपियर्ड 5000 ईयर्स एगो, तो किस पीरियड की बात कर रहे हैं, इस पीरियड की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है। तो now you can skip the Sanskrit. Please read only English translation. Who wants to read? Oh God, then there will be many devotees No, no, worshipping no. me. ऊपर ये वाला, the supreme personality of Godhead. Personality of Godhead, that peaceful people will come to you and upon reading will give you their things. You must remain like this on earth for 5,000 years of the age of Kali. O Ganga, then there will be many devotees worshipping me by my mantra, and merely by their touch, glance, and breathing of all those things will be immediately burned. आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब लोग मेरे साथ प्यार से, बिल्कुल हृदय से, फीलिंगली एक महामंत्र बोलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ओ गंगा, 5 साल तक तो सब लोग पाप तुम में डालते ही जाएंगे। यू मस्ट रिमेन लाइक दिस ऑन अर्थ फॉर 5000 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ कली। 5000 वर्षों तक सब पापी आके पाप डालते ही जाएंगे, और 5000 वर्ष बाद क्या होगा, then there will be many devotees worshipping me by my mantra. And what is that mantra? Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And can you imagine, आप में से कितने लोग डेली जप करते हैं, I see one beat back this प्रभु has. What is your name? सुभाशीष, वेरी गुड, हरि बोल। सबके पास जब कर रहे कितने लोग কতজন রেগুলারলি করছো, প্রতিদিন মালা কাটে যান, হাত ভালো করে, হাত ভালো করে, কতজন এভরিডे? माता जी आप कुछ बहुत सारे आज नए लोगों के लिए भी है। अच्छा। So you see, if you chant every day, then by your touching Ganga, Ganga's sins will be burnt. Hari Bo. Can you believe this? And I am not saying this. Lord Krishna is saying this. बोले जो मम मंत्रोपासक स्पर्शाद भस्मी भूतानि तत्क्षणात्, जो मेरे इस महामंत्र का जप करते हैं वो गंगा को छूकर गंगा के पाप को नष्ट कर देंगे। बताइए और क्या चाहिए? भविष्यन्ति दर्शनाच्च स्नानादेव ही जानवी, वो गंगा जी को देखेंगे भी तो गंगा जी का पाप नष्ट होते हैं। तो बाय देयर टच, ग्लैंस एंड बेदिंग, ऑल दोज सिंस विल बी इमीडिएटली बर्न्ड। तो ये किसने पॉसिबल किया? श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद के आने से पहले बहुत कृष्ण भक्त थे, लेकिन उस समय यू नो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, उनका एजेंडा था कि वो हमारे स्क्रिप्चर्स को लेते थे और उसको भयंकर मिस इंटरप्रेट करते थे, उसको बहुत कनिंग वे में प्रेजेंट करते थे। आपने नाम सुना होगा मैक्स मूलर, विलियम्स, ये सब लोग, यू नो लेफ्टिस्ट लोग। हाँ, प्रिंसर मैक्स मूलर भवन है यहाँ पर पालीगंज में। तो उनका एजेंडा था कि समहाउ इंडियन शुड लूज देयर फेथ इन देयर स्क्रिप्चर्स। तो कृष्ण भक्ति पूरी आच्छादित हो गई थी, ढक दी गई थी, इट वॉज कवर्ड, बट Srila Prabhupada appeared and uncovered it for everyone. Otherwise, where do you see doctors, engineers, chartered accountants, big businessmen chanting Hare Krishna? पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। पहले बाबा जी लोग बस करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने आके कृष्ण भक्ति का पूरा प्रचार किया, गंगा देवी के पाप भी धुल रहे हैं। तो जस्ट इसमें यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 5000 years of the age of Kali, तब तक वैसा ही रहेगा। उसके बाद कौन आने वाले हैं? श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी वो पापों का नाश करेंगे। इट्स अ प्रेडिक्शन 5000 years ago made। एक और प्रेडिक्शन दिखाता हूं आपको। ये तो बांग्ला আছে, एक तो पढ़ते पारे আপনি, হ্যাঁ কে পড়বেন বাংলায়? আমি চাই আপনার, হ্যাঁ कैन यू रीड? इधर से दिखने लगा। एक नाम संकीर्तन पढ़ो। लइया लइया।
অন্তর অসুর জীবে ফেলিবে কাটিয়া যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যায় মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায়। अरे वो अब मुझे तो गूज बम्प आ रहा है, पता है, गूज बम्प आ रहा है। तो बोलते कि यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाई बेता था। मैं सेनापति भक्त को भेजा। दिस इज अ प्रेडिक्शन बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। So this is from Chaitanya Mangal, 500 साल पहले, 500 years ago. Sutra Khanda, Song 12, text number 564 and 565. Lord Chaitanya clearly mentions that he will send his leading empowered preacher abroad. तो शिला प्रभुपाद जी वो पावरफुल भक्त थे, जो सेनापति भक्त थे, जो पाश्चात्य देशों में जाकर जिन्होंने प्रचार किया। तो you can read English also for those who don't know Bangla. Taking the sharp sword of congregational chanting of the holy name, I will root out and destroy the demonic mentality in the heart of the conditioned soul. If some simple people escape and giving up religious principles go to for all of country, far of country, then my commander in chief, Senapati Bhakta, will appear to chase them and distribute Krishna concept. अब बताइए इससे स्पष्ट क्या होगा? 1965 से पहले जीरो कृष्ण भक्त इन अमेरिका। 1960 के बाद hundreds and thousands of कृष्ण भक्ता with तिलक, कंठी, धोती, साड़ी, सब एकदम वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा एक फ्रेंड था IIT खड़गपुर में, उसको मैंने बहुत प्रीचिंग करने की कोशिश करी। मैं उसको माला देता था कि एक माला कर ले, थोड़ा प्रसाद खा ले, कभी आ जाएगा भाई प्रोग्राम में, आता नहीं था। फिर जैसा इसमें लिखा हुआ है कि यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, फिर वो चला गया अमेरिका और इसमें अमेज़न में जॉब करता है। तो अभी रिसेंटली उसने मुझे फोटो भेजा तिलक और कंठी माला के साथ, कहता भाई मैं भी हरे कृष्णा हो गया। मैंने कहा तो इंडिया में नहीं हुआ? कहता नहीं भाई अमेरिका में होगी। ओके, तो ये सेनापति भक्त कौन है? शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं। तो ये जो 3 प्रेडिक्शंस हैं जो पहले से शास्त्रों में दी हुई है, तमिल में, संस्कृत में और बांग्ला में, 500 years ago, 2000 years ago and 5000 years ago, they indicate that Srila Prabhupada, the empowered Acharya, was going to appear and do this miracle. तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी ने वेस्टर्नर्स को कैसे कन्विंस किया? प्रभुपाद जी जब जा रहे थे ना, तो किसी ने बोला स्वामी जी आपना भक्ति उखाने काज करबे ना, आपने उखाने किए कोट पैंट पहनो वहां पे जाकर। तो स्वामी जी बोले नहीं, मैं धोती कुर्ता पहनूंगा, उनको भी धोती कुर्ता पहनना सिखाऊंगा। You see this picture? Except for Prabhupada, all are Westerners and all are wearing धोती कुर्ता। प्रभुपाद ने पैंट कोट नहीं पहना, प्रभुपाद ने उनको धोती कुर्ता पहना दिया। अमेजिंग ना? उसके बाद इस्कॉन ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया, जैसे स्पेशली प्रभुपाद बेस्ट कंट्रीब्यूशन इज हिज बुक्स। तो प्रभुपाद ने एक भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट जिसका स्थापना करी, and they have distributed, the M means million, and actually this is an old figure, ये 2014 का फिगर है, अभी ये 816 मिलियन हो गए। तो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट इज द लार्जेस्ट पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वैदिक टेक्स्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितना वैदिक ग्रंथ है उसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट ने किया है। तो 516 मिलियन बुक्स, कितना जीरो? 51 करोड़, यस, 51 करोड़ बुक, ये पुराना फिगर है। तो अभी 80 करोड़ से ज्यादा वैदिक टेक्स्ट जैसे भगवत गीता आदि डिस्ट्रीब्यूट इस्कॉन अकेला ही कर चुका है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्ची स्टोरी मेरे साथ हुआ है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था खड़गपुर में, मैं बड़ा परेशान रहता था क्योंकि मैं दिल्ली से आया था मेट्रोपॉलिटन, तो मेरे सारे फ्रेंड्स रह गए, मेरी फूड हैबिट्स भी डिफरेंट थी। तो और यहाँ पर मतलब आप नहीं सब रिलेट कर पाएंगे। आप में से कितने लोग दिल्ली गए हैं? दिल्ली आप गए हैं?
अच्छा, दिल्ली में रहा तो कोई नहीं है, जब गया ही नहीं है तो रहेंगे कैसे ना। वहाँ का वेदर ना बहुत ड्राई है, और फूड भी बहुत डिफरेंट होता है। तो जब इतना, मैं खड़गपुर वाज लाइक, खड़गपुर इज लाइक रेन फॉरेस्ट, बहुत बारिश होती है। इतना बारिश होता था मेरे को डाइजेशन ही नहीं होता था कुछ भी। तो मैं सोच रहा था कि आई रीअपियर फॉर जेई एग्जाम, आई कैंसल दिस ईयर, और कहीं और चले जाएंगे, आईटी दिल्ली चले जाएंगे या मुंबई चले जाएंगे, यहाँ नहीं आना। तो बहुत परेशान हो गया था, सारे फ्रेंड्स भी वहीं रह गए थे। तो देन सडनली डिवोटीज अपीयर्ड इन माय लाइफ, लाइक श्री गोविंद घोष प्रभु, एंड दे गिव मी शिला प्रभुपाद बुक, और मुझे प्रभुपाद बुक का एडिक्शन हो गया। जैसे होता है ना, लोगों को स्ट्रेस होती है तो क्या करते हैं, सुट्टा लगाते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सुट्टे से सॉल्व नहीं हो सकती? ऐसा बोलते हैं ना, या कुछ लोग दारू पी के सो जाते हैं, या टीवी देखते हैं, है कि नहीं? अभी ओटीटी बोल रहे हैं, ओटीटी में एडिक्ट हो जाते हैं। मैं जब प्रभुपाद बुक मुझे मिली ना, मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैं पढ़ता ही रहता था। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, पता ही नहीं चलता था कितनी बुक पढ़ रहा हूँ। मेरी सारी स्ट्रेस दूर हो गई, मैं इतना खुश रहने लगा। मैंने कहा दिस इज वाई कृष्णा प्लेस्ड मी इन खड़गपुर। खड़गपुर को वो लोग लिखते थे केजीपी, आईआईटी केजीपी। तो केजीपी का हम लोग स्लैंग बनाते थे, कहाँ गर्दन फंसी। क्योंकि हमारे खड़गपुर कैंपस में हैंगर भी था। यू नो हैंगर? हैंगर में क्या होता था, वो जो फ्रीडम फाइटर थे 1940s में, उनको फांसी पे चढ़ाया जाता था, सूली पे चढ़ाया। तो हम लोग भी बोलते थे हमें सूली पे चढ़ने के लिए आया, कहाँ गर्दन फंसी। तो, लेकिन प्रभुपाद बुक पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद हमारा एक कैंप हो रहा था, ऑल इंडिया लेवल का कैंप था। एक भक्त थे, वो भी फर्स्ट ईयर के थे, वो एनआईटी सूरत कल से आए हुए थे। तो हम और वो साथ में ही रहते थे, अच्छी दोस्ती हो गई। उस दिन क्या हुआ, एक दिन मॉर्निंग में मैं आपके जैसा था, ऐसे ही पैंट शर्ट पहन के बैठा हुआ था, ऐसी जीन्स होती थी मेरी। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, और ऐसे एक ब्रह्मचारी मेरे जैसा बैठा हुआ था। वो ना एक प्रभुपाद की लाइफ की घटना बताने लगा, कि प्रभुपाद के एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, हाउ डू यू पब्लिश बुक्स सो प्रोलिफिकली? यानी जनरली एक अच्छा ऑथर एक बुक को पब्लिश करने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगाता है। एक अच्छी बुक 2 साल में पब्लिश होती है, पर प्रभुपाद यूज्ड टू पब्लिश समथिंग लाइक 8 or 9 बुक्स इन 6 मंथ्स। 2 मंथ में 3 बुक फटाफट निकलती जा रही है। तो वो रिपोर्टर भी परेशान होगी, स्वामी जी ऐसा कैसे कर देते हैं आप? तो प्रभुपाद said, and Prabhupada is very grave 75-year-old man with thick Bengali accent. I don't write these books, Krishna writes these books. प्रभुपाद ने ऐसा बोला। अब क्या होता है, जो रिपोर्टर होते हैं ना, वो पूछते हैं आपका आंसर पब्लिश कर न्यूज़पेपर में डालने से पहले कि कुछ कुछ मिसप्रोनाउंस तो नहीं हो गया है। तो मुझे स्वामी जी, ही लुक्ड एट प्रभुपाद, स्वामी जी कि मैं लिखूं या ना लिखूं आपके स्टेटमेंट को? और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ना, कि आई डोंट राइट दिस बुक्स, कृष्णा राइट्स दिस बुक्स। मतलब आप तो बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। हो जाएगा ना पब्लिसिटी स्टंट, मैंने नहीं लिखी, कृष्ण ने लिखी है। तो वो रिपोर्टर प्रभुपाद की तरफ देख रहा है, और प्रभुपाद का सेक्रेटरी साथ में बैठा था। तो सेक्रेटरी बीच में इंटरप्ट करके बोला, स्वामी जी वांट्स टू से दैट कृष्णा इंस्पायर्स हिम टू राइट दिस बुक्स। स्वामी जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान इनको प्रेरणा देते हैं लिखने के लिए। तो प्रभुपाद ने सेक्रेटरी की तरफ देखा, सेक्रेटरी को डांटा, व्हाई डू यू कैंसल माय वर्ड्स? व्हेन आई एम सेइंग कृष्णा राइट्स दिस बुक्स, दैट मींस कृष्णा राइट्स दिस बुक्स। अब रिपोर्टर ने भी लिख लिया, बड़ा हॉट न्यूज बन गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में, स्वामी जी क्लेम्स हिज बुक्स आर रिटन बाय कृष्णा, लॉर्ड कृष्ण। अब मैं बच्चा था, मैं भी आपकी तरह था, नया नया। मुझे लगा ये इस्कॉन वाले में फंसाने के लिए सब कर रहे हैं। नो डाउट इज फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। बेवकूफ आदमी डाउट नहीं करता है। आप डाउट कर रहे हो मतलब आप इंटेलिजेंट है ना? तो मैं सोचने लगा इस्कॉन का स्टंट है, हमें फंसाने के लिए। बोलेंगे कि कृष्ण इन किताबों को लिखते हैं, और फिर बाद में कह देंगे कि चलो भाई इन्हीं किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करो, इन्हीं के लिए लाइफ दे दो अपनी। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर इवनिंग में, वो रवि थेजा नाम था उनका, वो प्रभु जी का जो एनआईटी सूरत कल से आए हुए थे, ये लेक्चर में मैंने सुन लिया। तो उन्होंने मुझे एक बुक दिखाई, कमिंग बैक। है कमिंग बैक? नहीं है। तो एक कमिंग बैक प्रभुपाद की बुक है, जो कि उसका कवर में समझ गया, वो तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तेलुगु लैंग्वेज में, ब्लू कलर की बुक है। एक 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 बूढ़ा आदमी गेट के अंदर जा रहा है और बच्चा बाहर आ रहा है।
यानी कि यू कम एज अ चाइल्ड एंड यू लीव एज एन ओल्ड मैन कमिंग बैक, ऐसा है। तो उसके कवर से मैं समझ गया वो कमिंग कमिंग बैक है, उस पर तेलुगु में लिखा था, तेलुगु मुझे आती नहीं है। तो फिर उसने उसको बुक को फर्स्ट पेज खोल के दिखाया कवर पे, तो उस पर तमिल में एक स्टैंप लगी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि स्टैंप क्या लगी हुई है, तो उसने बताया कि ये ना हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में एक वैष्णव संप्रदाय है। तो 4 वैष्णव संप्रदाय होते हैं, जैसे एक हमारा है ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम आते हैं, एक रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और एक है श्री संप्रदाय। तो बोले हम श्री संप्रदाय से आते हैं। तो बोले ये जो श्री संप्रदाय का यहाँ पर स्टैंप लगा हुआ है, और वो लोग इस बुक को, ये रिकमेंडेशन स्टैंप है कि भाई आप इस बुक को पढ़िए। तो मैंने पूछा भाई ये श्री संप्रदाय वाले प्रभुपाद की बुक को क्यों पढ़ते हैं, तो अपनी बुक लिख सकते हैं, तेलुगु में लिखे ना, अपनी बुक निकाल सकते हैं। तब उसने मुझे एक बहुत भयंकर स्टोरी बताई। कहते हैं जो वो श्री संप्रदाय के गुरुजी हैं, वैष्णव है, वो लोग भी वैष्णव होते हैं। आप कभी अगर साउथ इंडिया जाएंगे तो तिरुपति में या श्रीरंगम में बीच में रेड लाइन होती है ना, हैदराबाद में तो कितना 160 फीट टॉल जो डीटी है रामानुजाचार्य की, दैट इज श्री संप्रदाय। तो वही रामानुजाचार्य के लाइन में जो एवं परंपरा प्राप्तम जो गुरुजी आते हैं, उन्होंने वो स्टैंप लगाते हैं। वो लोग प्रभुपाद की बुक लेते हैं तेलुगु लैंग्वेज में, अपना स्टैंप लगाकर अपने डिसाइपल्स को देते हैं कि ये वाली बुक पढ़िए आप। तो मैंने पूछा कि ये क्यों पढ़ते हैं, कहते हैं कि वहाँ उस समय जो श्री वैष्णव आचार्य थे, गुरु थे, उनके सपने में भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो पुस्तकें हैं ना, जो बीबीटी लिख रहे हैं, ये मैं लिखता हूं। ये कौन लिखता है, मैं लिखता हूं। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद नहीं लिखते हैं, उनके नाम से पब्लिश होती है, लेकिन आई एम द ओरिजिनल ऑथर। तो तुम अपने डिसाइपल्स को बोलो कि यही वाली बुक्स पढ़ें। तो नाउ दे सिंपली टेक आवर बुक्स, बीबीटी बुक्स, अपना रिकमेंडेशन स्टैंप लगाकर अपने डिसाइपल्स को भी देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपको जो प्रभुपाद बुक मिली है ना, 24 कैरेट गोल्ड, अगर आप उसको सीरियसली लेंगे, तो सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आई डोंट मीन दैट। सीरियसली आप पढ़ेंगे ना, it will transform your life and you will become instrument to transform thousands of lives. आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो these books are not ordinary books, साधारण किताबें नहीं है, इनको स्वयं भगवान कृष्ण ने लिखा है। ओके, तो इतनी सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पुराना डाटा है, 3 बिलियन, मोर देन 3 बिलियंस ऑफ sanctified vegetarian prasadam have been distributed। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है 300 करोड़, 3 बिलियन मतलब 300 करोड़। ये भी वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्री वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। अगर आपको इंटरेस्ट है फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, यू कैन कनेक्ट विद दिस। तो ये अलग अलग नाम से चलता है, मिड डे मील, अन्नामृता, इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन। इनफैक्ट आज ये जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रिलेटिव्स खड़े हैं बेचारे, उनको बॉडी नहीं मिले, बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इट इज रोस्टेड कंप्लीटली। बहुत बुरी स्थिति है वो बॉडी को देखकर। तो बॉडी डीएनए से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डीएनए फैमिली का लेके उससे मैच करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो वो बेचारे रिलेटिव्स भूखे खड़े हैं वहां पर, उनको लाइन में लगना पड़ रहा है, इतने सारे इंक्वायरीज हो रही। तो इस्कॉन ने आज भी वहां पर 1000 प्लेट्स ऑफ प्रसादम भेजा है। 1600 हजार प्लेट सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में आज भी भेजा है। तो कोरोना पीरियड में भी बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एंड इट्स फॉर फ्री। तो ऐसा प्रभुपाद की वजह से चल रहा है। और ये भी पुराना फिगर है, 65 इस्कॉन फार्म इको विलेजेस ग्लोबली। देखो पेट्रोलियम है, आप चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो इतना तो आप भी समझते हैं कि पेट्रोलियम इज गोइंग टू पेरिश, एक बार खत्म हो जाएगा। सो वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। तो ये जो सिविलाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट 40-50 ईयर से ज्यादा चलने वाली नहीं है, कोलैप्स। So we have to find alternative eco villages जिसमें लाइफ इज बेस्ड ऑन रिसाइकलेबल फ्यूल, जैसे काउ डंग वगैरह, और हम खेती करें अपनी फार्मिंग एंड कृषि गौरक्षा, फार्मिंग एंड काउ प्रोटेक्शन।
उस पर बेस्ड कम्युनिटीज। आपने एक देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, मैं भी गया था, देखा था मैंने, पर्सनली सीन दैट। कृष्णा वैली, कृष्णा वैली हंगरी में है। तो जब मैं गया था वो 450 एकड़ में है हंगरी में, और वहां पर आपको बैलगाड़ी मिलेगी। हंगरी गया था मैं, तो हमें बैलगाड़ी में अभी भी आप देखेंगे सब फॉरेनर्स हैं, लेकिन सब धोती कुर्ता पहनते हैं, माता जी लोग साड़ी पहनती हैं, और वो कोल्हू से तेल निकालते हैं। दे स्टे अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी, कार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनसे बहुत दूर रहते हैं वो लोग। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। आप जाएंगे ना, यू विल फील लाइक टाइम ट्रेवलिंग बैक टू 200 ईयर्स। आपको ये मॉडर्न गैजेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। तो दे ग्रो देयर ओन फूड, ऑर्गेनिक फूड, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। अभी आजकल देखिए 40 साल की उम्र में अर्थराइटिस हो रहा है, कितने कैंसर केसेस सुनने को मिलते हैं। पीपल ऑफ माई जनरेशन, आई एम 40 years old, cardiac, you can relate probably, Mataji, huh? So earlier we would not hear so many cases of diseases, cardiac arrest हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। हाँ, देखो मेरे बाल पूरे सफेद हो गए। I'm only 40-year-old, I look like 50-year-old. So this is because of unhealthy food, pesticide, insecticide, क्या क्या डालते हैं उसमें। So there they grow their organic food with organic fertilizer, manure जो होता है गाय का गोबर, उससे, and they are very healthy. So we also wanted to present a ecosystem which survives without petroleum, without electricity. वो वहां पर है, फार्म कम्युनिटीज। और सबसे बड़ा प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन है इस फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन। Srila Prabhupada was the first scientist to challenge, sorry, first saint to challenge the scientists. तो प्रभुपाद बोलते थे एक बार, इट्स इन अ फनी वे, डोंट टेक इट दैट वे। तो एक बार एक आदमी उनके पास आया, बोला स्वामी जी, we have evolved from monkeys, हम लोग बंदरों से आए हैं। प्रभुपाद बोला हम बंदरों से नहीं आए, तुम तो अभी भी बंदर ही हो, तुम्हारी हरकतें देखो। तुम तो अभी बंदरों जैसे ही काम कर रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ो। So Srila Prabhupada presented as Prabhupada debated with the scientists. So Prabhupada was not PhD or MBBS, but he could debate and defeat big scientists. बहुत simple logic से वो उनको defeat कर देते थे। तो प्रभुपाद की बुक है, आपको पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बुक है वो, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। प्लीज पढ़िएगा, प्लीज पढ़िएगा। आप लोग तो मेडिकल बैकग्राउंड से, आपको बहुत अच्छी लगेगी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पढ़िएगा। हाँ, इवोल्यूशन इज डिबंक्ड, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो ओके, प्रभुपाद ने सब बहुत कुछ, प्रभुपाद के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, हमने देखा कि प्रभुपाद एक सेंटली पर्सन है। अब आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाएंगे, कॉपी दैट। To the Middle East. अच्छा, बाय द वे, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस सो फार? किछु जिज्ञासा? आई एम वेरी फ्रेंडली, डोंट वरी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो प्रभुपाद इज अ वेरी स्पेशल सेंट। कभी कभी क्या होता है कि यू नो दैट स्टोरी फ्रॉम बाइबल। चल ठीक है, एक बार जब तक ये कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बाइबल से एक स्टोरी बताता हूँ। ये जीसस टेल्स दिस स्टोरी टू हिज अपोस्टल्स। जीसस एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसके 2 बेटे थे। उसका छोटा बेटा बोला कि पापा, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं चाहिए पापा, मैं कुछ भी करता हूँ बोलते हो ये मत करो, मैं यहाँ जाता हूँ बोले यहाँ मत जाओ, मैं ये खाता हूँ ये मत खाओ, मुझे मेरा प्रॉपर्टी का शेयर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, कैसे जाओगे? क्या, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे प्रॉपर्टी शेयर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। उसने अपना प्रॉपर्टी का शेयर लिया और चला गया दूसरे सिटी में।
मतलब पापा से दूर रहूंगा तो बहुत ज्यादा कान नहीं खींचेंगे। अभी क्या इतना सारा वेल्थ लेकर आया, तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए, बहुत मजा मस्ती किया, ये वो सब। लेकिन मजा मस्ती करके पैसा सारा खर्च दिया, 2-3 साल में सब खत्म हो गया। अब हुआ क्या कि पैसा सब खत्म हो गया, तो उसको कमाना आता नहीं था, रईस बाप का बेटा था, तो समझ में नहीं आया क्या करूं अब। भूख लगने लगी तो काम ढूंढने लगा। कारपेंटर की दुकान पे गया, बोला काम दे दो, बोले ये करना आता है, बोले नहीं आता, चल भाग यहाँ से। तो प्लम्बर की दुकान पे गया, बोला ये काम दे दो, बोले ऐसे घुमाना आता है, कहता नहीं आता, चल भाग यहाँ से, भगा दिया। तो बेचारा दर दर धक्के खा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है उसको। और क्योंकि पापा से लड़ाई करके आया तो वापस भी नहीं जा सकता, शर्म आ रही है। तो वहां पर ना एक वो था पिग फार्म, सुअर का। हाँ, उसने बोला चल ठीक है, तू मेरे यू टेक केयर ऑफ माई पिग्स, मेरे सुअर का ध्यान रखना, और तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारी सैलरी वो होगी जो जो सुअर खाता है वही तुम भी खा लेना थोड़ा सा, दैट इज योर सैलरी। वो पूरा अनस्किल्ड था, तो बेचारा क्या करता, कुछ पापी पेट का सवाल है। तो वहां पर पिग फार्म में काम करने लगा। पिग फार्म में काम लगे, दिन रात सुबह शाम सुअर का ध्यान रखता, और जो सुअर का खाना होता था वही वो भी खाता। इतनी दयनीय परिस्थिति हो गई है। बड़ा रोता था, पापा की याद आती थी, लेकिन किस मुंह से पापा के पास जाए। पापा से तो विद्रोह करके आया था ना, he rebelled against his father. So Jesus is telling this story. तो एक दिन उसको अपने भैया दिखाई दिए, बड़े भैया, 2 भाई थे ना, तो बड़े वाले भैया दिखाई दिए। तो भैया को देख के उसने मुंह छुपा लिया, शर्म आ रही थी। लेकिन भैया ने बजा, अरे छोटू, तू यहाँ पर, लेकिन तू इतना पतला कैसे हो गया है, हड्डियां दिख रही है तेरी, खाता पीता। अब वो फूट फूट के रोने लगा, कुछ बोला ही ना। तो उसके भैया को समझ में आ गया कि ये बेचारा बड़ा दुखी है, और बोलने में भी शर्म आ रही है। कहता चल तू मेरे साथ चल। तो अब जाना तो था ही उसको भी, उसकी भी इच्छा हो रही थी कि वापस घर में जाऊं, पापा मम्मी भाई सबके साथ फिर से रहूं। तो भैया उसको खींच कर ले गए। अच्छा, भैया ने पहले मैसेज कर दिया कि छोटू आ रहा है घर पे वापस। तो पापा ने फूल माला लेकर और ढोल नगाड़े लेकर पहले ही वो गांव के जो बाउंड्री थी उस पर पहुंच गए थे उसका स्वागत करने के लिए। तो धूम धड़ाम धूम धड़ाम धूम, ऐसे करके पापा ने उसको माला पहनाई, उसको गले लगाया, उसको गोद में उठा के घर पे लेकर आए। तो पहले अच्छे से खिलाया, फिर उसको नहलाया धुलाया। तो जीसस कहते हैं ऐसे ही हम लोग भी अपना घर स्पिरिचुअल वर्ल्ड भूल गए हैं, और यहाँ पर आकर लात खा रहे हैं। लात खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं। कैसा मस्त है, बढ़िया चल रहा है यार, क्या लात खा रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आप। वो अभी पहले पता चलता प्रोफेशनल एमबीबीएस तो पहले क्या हो रहा है अरे किड्स के साथ। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट बताते हैं कि आवर फादर गॉड लव्स अस वेरी मच। अच्छा, तो जैसे फादर ने बड़े बेटे को भेजा था ना, एल्डर ब्रदर, फॉर अस एल्डर ब्रदर इज शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद को ही भगवान ने भेजा है हमें वापस लाने के लिए। सो प्रभुपाद ब्रॉट मैसेज ऑफ गॉड हेड, इसलिए प्रभुपाद ने एक मैगजीन स्टार्ट करी थी जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड। तो हम सबको वापस बैक टू गॉड हेड ले जाने के लिए शीला प्रभुपाद आए। शीला प्रभुपाद की जय। अब आपको वीडियो भी रेडी हो गया होगा मोस्ट लाइकली। दो दो जो बैटरी है ना वो दो। वो बैटरी देना थोड़ा।
बंद करो वो भी ना वो स्क्रीन शेयरिंग पहले विंडो को खोलना नो just be ready for one sensational video on His Divine Grace, Srila Prabhupada. जरूरत पड़ा तो लगाऊंगा नहीं तो इसको साइड में लगा देंगे Bharatvarsha, India's profound culture, filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, and messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. The pain was so severe. I was attacked by heart attack while on the sea twice. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times of difficulty on an international scale. This gift was the teachings of Bhagavad Gita as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. In America, in September 1965, my mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested globally inspiring teachings of Indian A. Arts such as painting, music, instruments, and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam. C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. D. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God. F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of Vedic marriage with all its duty and its commitment. G. A God-centric program establishing a personal relationship with the Lord in the form of exquisite deity worship, performed communally with kirtan, distribution of Mahaprasad, and worship. H. A healthy lifestyle
with regulation such as rising early in the morning and pure habits such as bathing upon rising. I, Indian ethics, establishing the value from scriptures such as Ramayana and Mahabharata of a life filled with perseverance, tolerance and humility over personal appearance, education and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world. If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha, there will be no more trouble. Thank you very much. His gifts to India included 3 major centers of culture and education in 1. Bombay, the economic capital of India. 2. Vrindavan, India's foremost place of worship. And 3. Sriram Mayapur, ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character, their holistic culture, and their loving devotion to the Lord. Today, his students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world, for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium. Okay, thank you all very much. Srila Prabhupada ki. So please take Prabhupada's directions very seriously. You'll be truly happy in your life. I have seen frustrated doctors. I have seen frustrated engineers. I have seen frustrated IAS officers. I have seen frustrated chartered accountants. I have seen frustrated ministers. But if you chant Hare Krishna, then you'll be truly happy. Okay, तो अभी prize distribution होगा. Anybody has any questions or comments? कैसा लगा आपको? Are you happy? Yes. If you are happy, say Hari बोल. लगता है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. जोर से बोलो. जोर से. Thank you. So Prabhupada used to say that I am an old Indian man. जब Prabhupada अमेरिका गए, तो he was 70-year-old already. He celebrated his 70th birthday on ship. मैं एक अकेला बूढ़ा आदमी हूँ, मैं इतना कर पाया. अगर सारे इंडियंस मुझे ज्वाइन करेंगे तो हम कितना कर पाएंगे, है कि नहीं? प्रभुपाद बोलते थे कि इंडियंस आर सपोज टू बिकम जगत गुरु, बट दीज इंडियंस आर गोइंग टू अमेरिका एंड बेगिंग, गिव अस टेक्नोलॉजी, गिव अस अ जॉब, गिव अस एन एडवेंचर. तो वो बोलते हैं कि इंडियंस आर सपोज टू गिव अदर्स, बट वो जाकर भीख मांग रहे, टेक्नोलॉजी दीजिए हमें. तो प्रभुपाद बोलते थे इंडियन यूथ आर सिटिंग ऑन द हीप ऑफ जूल्स and they're crying for broken pieces of glass. Again, so he agrees. How many of you agree? Raise your hand. Exactly. Very good. So we are actually sitting on the heap of jewels, but we are crying for broken pieces of glass. If every Indian takes this seriously, whole world will become like you want to make India number 1. आप चाहते हैं कि इंडिया नंबर 1 हो. अभी इंडिया ने वो जो जीता था क्या T20 वर्ल्ड कप, तो कितना सेलिब्रेट किया गया था. मैं कहता हूं कि अगर सब लोग प्रभुपाद की शिक्षाओं को सीरियसली लेना, एवरी इंडियन विल बी ट्रीटेड लाइक दिस.
everybody will bow down. प्रभुपाद बोलते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, he did his education in London. So his father Motilal Nehru hired intentionally a British servant, and in those days that British servant was paid $300 per month. जानबूझ के मोतीलाल नेहरू ने उनके लिए एक ब्रिटिश सर्वेंट रखा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया। तो जानबूझ के उनको दिखाने के लिए कि माई सन इज सर्व्ड बाय ब्रिटिश। गुरुपाद बोलते थे, इधर मुझे देखो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 75 साल का, मेरे पास एक पैसा नहीं है, और ये अमेरिकन यूरोपियन लड़के लड़कियां जाके मेरे पैर दबाते हैं, मेरे रूम में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, और मैं उनको सैलरी नहीं देता, उल्टा वो लाके मुझे पैसा भी देते हैं। तो ऐसा ही इंडियंस को होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आ जाएगी बाद में, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई को छोड़ दीजिए, बट टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। इट विल हेल्प यू इंडिविजुअली, इट विल ऑल्सो हेल्प द वर्ल्ड ग्लोबली। स्वामी जी, मेरा डाउट था कि पहले मैं मतलब बहुत ज्यादा बिलीव करता था भगवान जी में, कृष्ण जी में, जो भी है, बट अब कुछ लाइक कि सब लगता है सब रैंडम हो रहा है, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। मैं फोकस भी करता हूँ तो उस दिन करा फिर छोड़ दिया, वैसा कुछ कंसंट्रेशन का कुछ मतलब मोटिव मिलता ही नहीं कि लाइक कैसे कर लेंगे, कैसे रोज पूजा मतलब क्लास भी जा रहे हैं तो उसमें कैसे पूजा का टाइम निकालो, पूजा भी करता है तो ठीक है ना, छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं, इससे कैसे बचें, लाइक कि कैसे हम फिर से स्पिरिचुअल बनने के बाद भी लगता है कुछ वैसा, लोगों से अगर बात भी करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, वो लोग इस चीज को ऐसा कुछ मतलब लॉजिक देते हैं जो कि नहीं हो पाता कि लाइक कि क्या ही हम उसको जस्टिफाई कर पाए या कुछ भी कर पाए, तो फिर लगता है डिफरेंट नहीं हो पाया तो लगता है कि उसका लॉजिक तो ठीक ही बोल रहा है वो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे मतलब फिर से स्पिरिचुअल बनना, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ आने के बाद भी उतना नहीं फील हो रहा थी। आपका क्या नाम है? सौरभ कुमार सिंह। सौरभ कुमार, अच्छा। आप पहली बार आए हैं आप? देखिए, जो हम घर में करते हैं वो मैं भी करता था घर पे, लेकिन वो ठीक है, दैट इज प्रिलिमिनरी पायस एक्टिविटी, वो थोड़ा सा पुण्य कर्म होता है। लेकिन जो हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ भक्ति, बहुत साइंटिफिकली हम करते हैं। तो आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे, आपको बहुत सिस्टमेटिकली सिखाया जाएगा कि भक्ति कैसे करनी है, बहुत सिस्टमेटिक ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये श्री गोविंद घोष प्रभु यहाँ पर हर वीक क्लास करते हैं, एवरी वीक हियर ना, एवरी वीक। आप यहाँ पर रेगुलरली आइए, हमारी बुक्स को पढ़िए, कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और आप मतलब इट होल रोड मैप इज ऑलरेडी लेड, कैसे आगे बढ़ना है आपको वो करते जाना है। जैसे कि आप अपने आप से प्रिपरेशन करते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आज आपने ये वाली बुक उठा ली, आज रेस्निक हेलिडे उठा ली, कल एच.सी. वर्मा उठा ली, परसों कोई बाइबिलोग्राफी ऑफ फिजिक्स उठा ली, तो वैसे आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। लेकिन आप किसी के गाइडेंस में करते हैं तो बताएगा भाई सबसे पहले वो रेस्निक हेलिडे छोड़ो, बाइबिलोग्राफी ऑफ फिजिक्स छोड़ो, सबसे पहले अपने एनसीईआरटी उठाओ और उसमें पहले बेसिक क्वेश्चंस करो, है ना। तो हमें सिखाया जाता था जब मैं आईटीजी की प्रिपरेशन कर रहा था, बोले अगर कोई 2 मार्क का क्वेश्चन है और आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो स्टिक टू द बेसिक, ऐसे बोलते थे, स्टिक टू द बेसिक। तो ऐसे अगर आप इस संगम में, इस एसोसिएशन में कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आगे बढ़ना है, और आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर 6 months, सौरभ, सो गिव इट अ ट्राई फॉर 6 months। 6 महीने आप ट्राई करिए, आपसे पैसे तो ले नहीं रहे वैसे भी, आइए सुनिए, कोई क्वेश्चन आता है पूछिए, और बाद में शायद प्रसाद भी है, प्रसाद भी फ्री है, प्रसाद भी लीजिए। आपको अच्छा लगता है 6 महीने बाद कंटिन्यू करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बट 6 महीने जरूर ट्राई करिए, ठीक है। थैंक यू। और कुछ, एनी अदर क्वेश्चंस, डाउट्स? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। वो मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे एक सब दिखाना है, जब मैं माला जपता हूँ फिर भी वो याद में आ जाता है। तो 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था ना बांग्लादेश में, वो जेनोसाइड का तो डिटेल्स में मैंने पढ़ा था, तो वो जो छोटा छोटा टॉपिक में पढ़ा था ना, हर बार तुम्हारे स्टेप पे आ जाता है
कैसे लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, कैसे हिंदू देख कर मार दिया गया है, वो हर वक्त मेरे तरफ चले आते हैं भाई, छूट नहीं रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेटली अब किसी को भी वैसे आप जो गुस्सा आ रहा है वो नेचुरल है, सबको आता है, मुझे भी आता है, लेकिन गुस्सा भी एक उसको सही डायरेक्शन देना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए। आप नहीं चाहते ना कि वैसा किसी के साथ हो, आप नहीं चाहते ना वैसा किसी के साथ हो, तो आप भक्ति का प्रचार करिए, क्योंकि आप भक्ति का प्रचार करेंगे तो अपने आप ही ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये सब दुनिया भर का डिंग डांग डुंग डांग हो रहा है, वो अपने आप ही नहीं है। क्योंकि भक्ति आपके सब क्वेश्चंस को रैशनली आंसर करती है। तो कन्वर्जन क्यों होता है? बेवकूफ बना के कन्वर्जन करते हैं। वो आदिवासी लोगों को ले जाते हैं बस में, बच्चों को, और बस को खराब कर देते हैं, तो बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा। तो बच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल चिल्ड्रन, वो बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ड्राइवर बस को स्टार्ट ही नहीं करते, देखो बस स्टार्ट नहीं हुई। मतलब हमारे गॉड का नाम बोलो, वो अपने गॉड का, उनके गॉड का नाम बोलो, देखो बस स्टार्ट हो गई। तो कौन गॉड अच्छा है, हमारा वाला या आपका हरे कृष्णा वाला? ऐसे करके ऐसे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। एक्चुअली इसमें गलती हिंदुओं की है, बिलीव मी, क्योंकि वी गेव अप आवर वैल्यूज, वी गेव अप आवर स्क्रिप्चर्स एंड वी वांटेड टू बिकम मॉडर्न। तो उसके कारण ये सब हो रहा है, पूरा समाज में ही हो रहा है। आप एक अच्छा, खुद एक अच्छा एग्जांपल बनिए। आप डॉक्टर हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि डॉक्टर और लॉयर्स हैव हाईएस्ट इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी। आप एक अच्छे भक्त बनेंगे, आपको देखकर कितने लोग कन्वर्ट होंगे, आपको पता नहीं है ये बात। एक अच्छे भक्त को देखकर ना लाखों लोग भक्त बनते हैं। तो जो सिंपल लोग हैं, जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो तो आपको ही देखेंगे, अरे इतना बड़ा डॉक्टर है, ये हरे कृष्णा कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ तो होगा। तो अगर आप करेंगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा, और ये दोबारा कभी नहीं होगा जेनोसाइड। अब जो हो गया है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स, वो भी चलते रहना चाहिए, बट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन नहीं होगा, आप बताइए, ये बंगाल में कन्वर्जन कोई आज से थोड़ी हो रहा है, तो जो बांग्लादेश में हुआ वो सेंचुरीज का कन्वर्जन हो रहा है, उसका कारण है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, पहले तो सब हिंदू थे, क्यों वो मुस्लिम और क्रिश्चियन बने? क्योंकि उनको हमने ठीक से ट्रीट नहीं किया, उनको एजुकेशन नहीं मिला भक्ति का, साइंस, हमारे वैदिक साइंस का अच्छे से एजुकेशन नहीं मिला, तो वो मुस्लिम बन गए, क्रिश्चियन बन गए, उनको क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला। तो अभी हमें एजुकेशन के द्वारा फिर से ये एस्टैब्लिश करना है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट साइंस। उनको ये समझ में आ गया तो वापस अपने आप बनेंगे, इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिमान लोग अपने आप बनेंगे। और एक बुद्धिमान व्यक्ति बनता है ना, बाकी सब भेड़ चाल होता है, सब उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, ऐसा है। तो आप देखेंगे हमारे हिस्ट्री में रहा है कि इतने सारे एथीस्ट होते हैं, वो बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं, उनको देखकर बाकी लोग एथीस्ट बन गए, कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम बन गए, क्रिश्चियन बन गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में भक्ति का अच्छे से पालन करें, प्रभुपाद बुक्स को बहुत ध्यान से सिस्टमेटिकली पढ़ें। प्रभुपाद एकमात्र भारत के संत हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस और मुसलमान को वापस वैदिक धर्म की छत्र छाया में लेकर आए हैं, हजारों की संख्या में, एक दो नहीं है। अब वो केवल आपके एनिमी नहीं है, अब वो आपके साथ हैं, वो भी तिलक कंठी माला पहन के आपके साथ हरे कृष्णा कर रहे हैं। आई नो डजन्स ऑफ मुस्लिम्स हु आर नाउ हरे कृष्णास। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहीं पर ही कलकत्ता में एक प्रोफेसर शेख इस्माइल है। प्रोफेसर शेख इस्माइल, ही इज मुस्लिम एंड ही इज अ प्रोफेसर इन अ क्रिश्चियन कॉलेज। मैं भूल गया, कुछ सेंट जोसेफ ऐसा कुछ कॉलेज है। आई कैन गिव यू मोर डाटा इफ यू वांट। He chants Hare Krishna 16 rounds Mahamantra every single day. He does not eat meat. He does not drink. No smoking. Not even onion garlic. He does not have illicit sex. And he does not gamble. कृष्ण भक्त बन गए हो, मुस्लिम प्रोफेसर। आप भी ये कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे भक्त बने और प्रचार करें, आप बन सकते हैं। यू कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। देखो, चिंता करने से क्या होगा, आप कुछ मार्ग ढूंढिए ना, फाइंड आउट सम वे टू हेल्प, रीचिंग करिए, प्रभुपाद बुक्स को जहां हो सके पहुंचाइए। और आप सबसे इंपॉर्टेंट, आप समझिए, आप पढ़िए और दूसरों को भी दीजिए। व्हाट इज योर नेम? सौभाग्य घोष। शोभादित। सौभाग्य। सौभाग्य, सौभाग्य, वाह, आपका तो सौभाग्य खुल गया है। आपका नाम आज सार्थक हो गया है।
तो सौभाग्य का सौभाग्य, अभी औरों का सौभाग्य खोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं, साथ दीजिए हमारा, तो उसी से कुछ होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। उस गुस्से को चैनलाइज करिए अच्छे से, है ना? ओके, एनीथिंग एल्स? सौरभ, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा आप आए नहीं आए। मैं नेक्स्ट वीक को मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक को नहीं आ पाऊंगा मैं। हाँ, तो वहाँ पे प्रभु जी के टच में रहना, श्री गोविंद घोष प्रभु के टच में रहना। ओके, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ क्वेश्चन? तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग कहते हैं कि चैंट हरे कृष्णा मंत्र एंड वी है, तो हम लोग चैंट तो करते हैं, मतलब किसी नाम नहीं हो पाता है लाइफ मतलब शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम लोग चैंट करते हैं, लेकिन मिजरीज एंड सैडनेस कम नहीं होता है कि हम लोग देखें, या फिर एक के बाद एक फॉलो करते जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ, तो ये तो नहीं कह सकते कि उसमें कोई मतलब कृष्ण भक्त नहीं होंगे, हो सकता है होंगे, या नहीं मतलब हो सकता है होंगे। जैसे कोई वैष्णो देवी में कोई जाता है जो बस में जाता है, उसमें फोटो भी लगा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है हुआ। तो क्या जैसा एक वीडियो आया था कि भगवत गीता सेफ था, लेकिन जो विक्टिम्स इतने सारे हो चुके हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भगवान को मतलब उनका बुक्स ज्यादा प्रिय है देन कि उनका फॉलोअर, देन कि उनका जो डिसाइपल्स है? नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखिए, भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप हरे कृष्ण चैंट करेंगे तो आपकी डेथ नहीं होगी। इनफैक्ट उल्टा भगवान ने बोला गीता में, जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यस्य से, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो होगी। तो एक्चुअली अगर हम ये प्रीच कर रहे हैं कि आप हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे आपकी डेथ नहीं होगी, तो गलत है, ऐसा मत करिए। फॉलो करते जी मैं बताता हूँ, इसका मैं आंसर कर सकता हूँ। इसका आंसर ये है कि जैसे कि आप बम्प है, सड़क पे जा रहे हैं और बम्प है, आप साइकिल से जाएंगे पूरा झटका लगेगा, लेकिन अगर आप BMW में जाएंगे ज्यादा झटका नहीं लगेगा। तो चैंटिंग हरे कृष्णा करने से प्रॉब्लम हो सकता है आपकी वैसे की वैसे रहें, प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, लेकिन आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान आप क्या स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, क्या है? अच्छा, PGT में। तो PGT में मान लीजिए आपने टॉप किया पूरे स्टेट में, और आपके पेरेंट्स को आप बताने के लिए घर जा रहे हैं, आप ट्रेन में चढ़ा, आप इतना खुश हैं, किसी ने आपके पैर के ऊपर ओवर स्टेप, पैर के ऊपर पैर रख दिया, आपको पेन होगा? होगा, है? लेकिन आपको इतनी खुशी है कि मैंने PGT में टॉप किया है, तो आप ज्यादा माइंड नहीं करेंगे, अरे ठीक है चलता है यार। लेकिन आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, किसी ने पैर पे रखा, आप उसका भी दिन खराब कर देंगे। अभी बताता हूँ तुझे, है ना? तो हरे कृष्णा भी ऐसा ही है। तो प्रॉब्लम आपकी रहेगी, लेकिन आपको इतना एम्पावरमेंट आएगा भगवान से कि यू कैन इजीली डील। तो जस्ट चैंट हरे कृष्ण, एम्पावरमेंट मिलेगा। दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों है? इतने सारे लोग मारे गए, तो इतना अन्याय क्यों हो रहा है? पूछ रहे हैं कि इतना अन्याय क्यों हो रहा है, इतने लोग मारे क्यों गए? तो एक्चुअली क्या होता है कि लॉ ऑफ कर्मा ऑलवेज वर्क्स, कि हम तो सिर्फ एक साइड देखते हैं ना पिक्चर की, बैक साइड में नहीं देखते हैं। तो जिसने ऐसा कुछ पाप किया, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बिकम इनसेंसिटिव टू अदर्स मिजरीज, बट डेफिनेटली लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी, कोई बच नहीं सकता है उससे। तो जैसे कि एक हमारे घर पे वो था, सिल बोलते हैं उसको, ग्रेनरी, यू नो ग्रेनरी, जिसमें ग्रेन रखा जाता है, तो उसमें ऊपर से ग्रेन डालते हैं और नीचे एक होल होता है जिसमें से निकलता है, क्या बोलते हैं आप? साइलोस, सिलोस, साइलोस, ग्रेनरी बोलते हैं हम लोग। तो वैसे ही होता है लॉ ऑफ कर्मा भी, आप ऊपर से कर्म डाल रहे हैं और नीचे से निकल रहा है। तो हो सकता है कि अभी आपका खराब मतलब आप अच्छा डाल रहे हैं, यानी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी ऑफ ग्रेन डाल रहे हैं, लेकिन आपने पहले खराब डाला हो, तो पहले वाला नीचे से निकलेगा। तो हो सकता है कि आप पूछ रहे थे मैं तो सब कुछ अच्छा करूं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, क्योंकि आपने वो पहले वो वाला डाला था, तो वो अभी आ रहा है। लेकिन अभी आप अच्छा डालेंगे तो बाद में अच्छा आएगा, लेकिन आप अभी खराब डालेंगे तो बाद में भी खराब आएगा। सो देयरफॉर कीप डूइंग गुड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीप कनेक्टेड टू कृष्णा। कृष्णा इज ओनली वन पर्सन हु कैन कट योर कर्मा, नो वन एल्स कैन कट योर कर्मा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भक्ति करने से कर्म जल जाता है, नष्ट हो सकता है, नहीं तो और कोई मार्ग नहीं, और कोई तरीका नहीं।
तो वो जो हो रहा है, that indicates जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम है ना, that indicates that this world is not for us. You know, there is one professor in University of Virginia. उनका नाम है डॉक्टर E.O. विल्सन. He is an ecologist जो एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं. तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंज सा उनका फाइंडिंग था, उनका रिसर्च फाइंडिंग. उन्होंने सब स्पीशीज को स्टडी किया, फूड साइकिल, फूड साइकिल. वो इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, ऐसा करके फूड साइकिल बनता है. तो उन्होंने स्टडी करके पता चला कि इसमें एक स्पीशी है, अगर उसको हटा दें तो फूड साइकिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो स्पीशी बेकार की स्पीशी है. Which species? Human beings. Just see what an insult for human beings. You know, what does it mean? It means that we are not supposed to contribute at material level. This species, human species, is designed to contribute at spiritual level. हम बने ही स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन के लिए, स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन के लिए. नहीं तो हम सारे ह्यूमन बींग्स को हटा दो और अच्छा चलेगी दुनिया. कोरोना टाइम में हमने देखा ना, वो यमुना एकदम साफ हो गई और चंडीगढ़ से हिमालय दिखाई दे रहा था, इतना साफ हो गया था वातावरण. तो ह्यूमन बींग्स को रिस्ट्रेन कर दिया. हमें लोग सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं काम को. So we are supposed to contribute at spiritual level. That is the conclusion. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Now there will be prize distribution. फोटो तुम ले लेना, ब्राउजिंग वीडियो ले लो, ठीक है. हरे कृष्ण. तो हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप लोग सब आज के दिन आप लोगों ने स्पेयर किया. खास करके बहुत सारे कॉलेजेस से आज बच्चे लोग आए हैं. तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 2024 में सितंबर अक्टूबर, जब वो सब इंसिडेंट चल रहा था, बहुत हॉट इश्यूज चल रहे थे, तो उसी समय हम लोगों ने करीब 6-7 हफ्ते 6-7 सेशंस हम लोगों ने लिए थे. बहुत बेसिक सेशंस हैं. एंड अगर जैसे आप सौरभ हाँ, तो आज बहुत सारे लोग आए हैं. तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों ऐसी चीजें होती हैं, वहां पर भी हम लोगों ने लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन लिया, सेशन नंबर 7. तो तब हम लोगों को समझ में आएगा, ब्रॉड आइडिया, ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि इसके पीछे कुछ भी जो हो रहा है उसके पीछे ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण भी है. ऑफ कोर्स उनके जीवन में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑफ कोर्स इस लाइफ से हम लोग नहीं समझ सकते. तो वी हैव टू बी कंपैशनेट. और साथ ही साथ ये जो 7-8 सेशंस जो हमारे पहले वाले हुए हैं, उससे भी हम लोग को ब्रॉड आइडिया हो जाता है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है. राइट, हम लोग को क्रैश कोर्स चाहिए. जैसे मैरो का मटेरियल मिल जाए तो क्या होगा, राइट, अरे बस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पूरा टेक्स्ट बुक कौन पढ़ेगा. और एग्जाम के पहले तो हम लोग सबसे छोटा वाला बुक निकालते, राइट, पूरा साल भर जो करना है, लेकिन क्वेस्ट, राइट, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो निकालते हैं कि भाई किसी तरह से पास कर दें. राइट, तो हमारे पास समय नहीं है क्योंकि एमबीबीएस का सिलेबस इतना बड़ा है. और अगर भागवतम और सब कुछ पढ़ने को मिले, कहाँ टाइम है भाई हमारे पास. अगर ये कुछ सेशंस अगर आप लोग करते हैं तो आज मैं बहुत आभारी हूँ. कौन से कॉलेज से आए हैं आज? आरजी पर थे काराकारा से. हरे कृष्णा. वी आर वेरी थैंकफुल. हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ऑल द वे. आरजी का से 10-12 स्टूडेंट्स आए, राइट. रंजित और 12 जन, रघुनाथ, राइट, रघुनाथ. मैं रंजित रघुनाथ में कंफ्यूज हो गया, दोनों आर से. तो 12 लोग आए. अच्छा, सीएनएमसी से कितने लोग हैं? सीएनएमसी. हरे कृष्णा. तो वी वेलकम यू ऑल फॉर कमिंग टुडे. शायनदीप, राइट, राजदीप. आज के मनोज नहीं, मनोज बड़ी गए और खो के सब दोस्त लोग आए. ओके. एमसी के कत जना से? 2 जन से. हरे कृष्णा. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और कोई कॉलेज बर्धमान से कौन आए? हरे कृष्णा. तुम्हारा नाम? सप्तर्षि कॉल. हरे कृष्णा. एसएसकेएम
हरे कृष्णा। शिवम शिवम प्रभु एसएसके से। और कोई इसके अलावा कोई और कॉलेज? JNN कॉलेज कोल्लानी, राइट? तो कोल्लानी से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो होप, और हमारे प्रवीण प्रभु अभी पीजीटी हैं, ऑर्थोपेडिक पीजीटी। और पीछे जो मैडम बैठी हुई है सुमिता दत्ता मैडम, CNMC पास आउट मैडम है, वो भी क्विज में पार्टिसिपेट, वो क्लासेस से कनेक्टेड बहुत दिनों पहले से ही। तो रामपुर हाट कॉलेज में वो एनाटॉमी की प्रोफेसर है। तो बहुत सारे बच्चों को वो कितने, हाँ रामपुर हाट से मालदा में अभी हैं। पहले रामपुर हाट में कनेक्टेड, हम लोगों से रामपुर हाट में कनेक्टेड होते हैं, अभी मालदा में है। फिर এখানেও হয়েছিল না বাতার সাথেও কিছুদিন আপনি করলেন এখন কিছুদিন। तो बहुत सारे बच्चे उनके अंदर में एनाटॉमी के पास आउट हैं। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में भी वो टीचर रह चुकी हैं। तो समहाउ मैं 1 साल के लिए मिस, 1 साल 2 साल के लिए मिस हुआ था उस समय। मतलब 2006 में मेरा फर्स्ट ईयर था, आई थिंक 2008 আপনি পড়াতে গেছেন, 8 পড়াতে গেছেন। तो वो भी इस बार क्विज में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो आप, हम सब आपका शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और सबके लिए जीवन में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो और आपके जीवन में परम सौभाग्य, सौभाग्य आपके जीवन में आए। डॉक्टर शंखा आए हैं क्या? हाँ, हरे कृष्णा। ओके ओके, हरे कृष्णा। डॉक्टर शंखा मेरे ऑनलाइन बैच से बहुत सालों से कनेक्टेड है। तो हम बुझते पारेंगे अपनी रिएक्शन। तो मेरे रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज में ही है, सर्जरी पैथोलॉजी। तो बहुत सालों से हैं ऑनलाइन, मेरे एटलीस्ट 4 साल 5 साल से मुझे कनेक्टेड है। तो बट मेरा कभी आज तक मुलाकात नहीं हुआ, आज तक पहली बार मैं तो हर क्विज में वो टॉप करते हैं। जनरली वो टॉप 10 में रहेंगे। तो इस बार भी वो आए हैं क्विज में। आज हम लोग का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग का एक तरह से रीयूनियन हो रहा है। और सारे बहुत सारे बच्चे लोग अभी बाहर हैं, तो वो लोग आज नहीं आ पाए। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन 50 एमबी वगैरह एमबी का चक्कर है, सेमेस्टर भी है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो मैं एक बार इसमें ये भी दिखा दूंगा। अच्छा, इधर मैं इधर अनाउंस ही कर देता हूँ, ठीक है? तो हम इस बार जो क्विज का रिजल्ट है, टॉप 16, तो टॉप 16 जिन्होंने 70% के ऊपर जिन्होंने मार्क्स अचीव किया था, उन सबको हम लोग कुछ ना कुछ स्पेशल प्राइजेस दे रहे हैं। और इनफैक्ट जो लोग आज आप आए हैं, सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। हरे कृष्णा, हरि बोल। सबको, कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाले और खाली पेट भी नहीं जाने वाले। हरे कृष्ण। तो मैं आप लोग यस, तो आप देख पाएंगे, यहाँ पे दिख भी जाएगा आप लोग, ठीक है? तो फर्स्ट, हाँ उसको फुल स्क्रीन करो, ऊपर ऊपर फुल स्क्रीन, ठीक है? इसके स्क्रीन शेयरिंग में भी कर सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग में जाओ, जूम का स्क्रीन शेयरिंग, ये गो टू दिस, उसका फुल स्क्रीन कीजिए। तो सामने एक एक करके आना है जो भी है, क्योंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया ये क्विज कंपटीशन हुआ था। तो इसमें मैक्सिमम लोग बाहर के हैं। जो कलकत्ता वाले हैं उन लोगों को हम लोग एटलीस्ट बुला रहे हैं। तो पीछे वाला फोटो प्राइस प्राइस प्राइस, हाँ एक लेके आ, एक लेके अरेंज कर, ये वाला पहले देना, ये वाला। अरे तो प्रज्ञा भारती, बैठ जाओ सबको। तुम भी बैठ जाओ, तुम इस साइड आ जाओ, इस कॉर्नर में आ जाओ। तो प्रज्ञा भारती, तो शी इज फ्रॉम रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची। तो शी इज द टॉपर। उसको ऑलमोस्ट 90% के ऊपर मार्क्स आए थे। हम लोगों ने जो क्विज किया था सीरियसली बहुत लोग मतलब जो भी अटेंड किए हैं सबको अच्छे मार्क्स आए। तो शी इज द टॉपर। तो उनके लिए स्पेशल हम लोग मतलब ऑलमोस्ट इस बार हम लोग 32,000 रुपीज से भी ज्यादा का प्राइजेस दे रहे हैं। तो जो भी है, तो टोटल इन सम 32,000 से भी ज्यादा है। तो और बाकी सबको भी प्राइस कुछ ना कुछ मिलेगा आज। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, प्रज्ञा भारती फर्स्ट प्राइज। तो एक टाइटन का वॉच है और भगवान का फोटो है। और सेकंड जो है तमन्ना भौमिक, शी इज अगरतला में है, अगरतला मेडिकल कॉलेज। वो अपने कॉलेज में अपने गर्ल्स हॉस्टल में टीचिंग करती है। ऑलमोस्ट 20 गर्ल्स स्टूडेंट्स उसके कॉलेज ऑनलाइन में भी ऑल्सो। देखिए तमन्ना है कि नहीं, तन्मय है। तो वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन रही थी। ये सारे रिकॉर्डेड भी हैं, जो भी हम लोगों ने किए हैं अभी तक जितने भी सारे रिकॉर्डेड हैं। तो आप लोग बाद में भी कैचअप कर सकते हो, किसी का भी कुछ छूटने वाला नहीं, ठीक है? फ्यूचर के लिए भी हम लोगों ने सारे पैटर्न सेट करके रखे हैं, फंडामेंटल सबका क्लियर हो जाए। तो तमन्ना वॉनिक अपने कॉलेज में भी सबको ये कर रही है। तो शी ऑल्सो, उनका भी टाइटन लेडीज वॉच है। एंड द थर्ड पर्सन, हरे कृष्णा, अर्घो कमले, ठीक है? हरि बोल।
सबको ताली बजाइए। हरे कृष्ण। तो रेगुलरली वो साधना करते हैं, प्रभुपाद लेक्चर एवरी डे प्रभुपाद लेक्चर, नहीं तो प्रभुपाद की बुक पढ़ेंगे, रिपोर्ट करते हैं एवरी डे ऑलमोस्ट 6 राउंड्स हरे कृष्ण एवरी डे चैंट करते हैं। फादर मदर डिवोटी है एंड टेक्स वेजिटेरियन फूड एवरी डे। हरे कृष्ण हरे। तो इधर आ जाओ थोड़ा, सबके सामने फोटो हो जाए इधर। एंड टाइटन वॉच अभी। हरे कृष्ण। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद प्रवीण भगत। तो प्रवीण भगत भी ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स ही है। तो एकदम थर्ड में एक्चुअली 2 लोग हैं, तो हम उनके लिए भी वन सेकंड, तो क्योंकि थर्ड में भी 2 वो वाला फोटो भी दिखाएंगे, ठीक है। ही इज ऑल्सो थर्ड, बट हम लोगों ने सीरियल ऑर्डर में फोर्थ। हरे कृष्ण। टाइमिंग ऑफ डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रवीण प्रभु इज ऑर्थोपेडिक पीजीटी, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और अभी हो गया है, घुस गया मतलब हो गया। तो हमारे कहाँ पे है, कौन सी जगह पे? रोहतक। रोहतक मतलब हरियाणा। प्रभु जी हरियाणा से ही हैं। तो बेसिकली तो एक ये उसका म्यूट बटन दबा दो, म्यूट उसके नीचे, एवी म्यूट म्यूट नीचे एकदम नीचे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट। बस। तो उनके लिए भी प्रभुपाद जी का ऑडियो डिवाइस, लेक्चर डिवाइस, ही वांटेड कि मुझको लेक्चर सुनना है, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशली प्रभुपाद जी का ऑडियो डिवाइस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे। आपके फादर भी है मंदिर में, फादर मदर भी है मंदिर में है। थैंक यू सो मच प्रवीण भगत। नाउ नेक्स्ट इज अभिलाषा कुमारी। वो भी तो जो भी 4th 5th 6th 7 मतलब 5 6 7 नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स भी हैं, सर्टिफिकेट्स लिखो प्रभु, सर्टिफिकेट सबके लिए सर्टिफिकेट्स भी हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेके आ जाओ थोड़ा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ तो थर्ड वाला निकालो, थर्ड और उसके बाद फोर्थ और दो प्रवीण भगत। ओके, नेक्स्ट है अभिलाषा कुमारी। ये भी राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस रांची से है, तो उनको भी हम लोग भेज देंगे सब, जो भी उनके लिए ब्लूटूथ ईयरफोन्स। हरे कृष्णा। तो इस कौन से कंपनी का है? रियलमी। तो ब्लूटूथ हेडफोन्स है उनके लिए भी हम लोग, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कीर्तन सुने और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने। हरे कृष्णा। पढ़ाई में भी हेल्प करे, और साथ ही साथ सौहार्द घोष आ जाए हैं। सौहार्द तो सौहार्द नहीं आया, चलिए प्रभात मंडल आ जाओ 7 नंबर। हरे कृष्णा। सबको ताली बजाइए। प्रभात टू के मम्मी पापा डिवोटी हैं, प्रभु जी भी कत माला जब करछो एवरीडे 8 राउंड्स एवरीडे चैंट करते हैं, और प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर भी सुनते हैं, तो एवरीडे ही इज डूइंग। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है 8 9 10 11 12, उसके बाद जो है बीच में जिनको भी हाँ, तो MI पावर बैंक 10,000 mAh और साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स, और सबके साथ इसके साथ सबको श्री श्री राधा माधव का फोटो भी मिलने वाला है, वो तो सबको लास्ट में मिलेगा ही, ठीक है। हरे कृष्णा, वो अलग है सबके लिए। तो आ जाइए। नेक्स्ट इज 9 नंबर शंकर चटर्जी। हरे कृष्णा। डॉक्टर शंकर चटर्जी की जय हो। गुरु जी बहुत सिंसियरली कृष्ण कथा सुनते आए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा उनके जीवन में सौभाग्य का उदय हो, कृष्ण भक्ति और भी अच्छे से सिंसियरली करते रहे। हरे कृष्ण। हम लोग को ही सीखना है, प्रोफेसर पीजीटी सब कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर सुमिता दत्ता। हरे कृष्ण। नंबर 10। हरे कृष्ण। अच्छा, तो मैडम अपना प्राइज है, क्योंकि शी वांट्स टू गिव टू सम
डिवोटी। तो एक डिवोटी है मनोज, तो हमारे मनोज CNMC के ही पार्ट टू फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो माता वांट्स टू गिव टू समवन हु इज सिंसियरली प्रैक्टिसिंग। तो पूरा जो कोर्स है तो ऋषभ प्रभु और मनोज प्रभु इन लोगों ने पूरा कोऑर्डिनेट किया था स्टार्टिंग से। तो ऋषभ प्रभु के पास ऑलरेडी है प्रभुपाद लेक्चर डिवाइस, ये वाला भी लेक्चर डिवाइस माता जी वांट्स टू गिव टू दैट। तो आज प्रभु जी नहीं है, आज जलपाईगुड़ी में है, तो उनके लिए हम लोग ये रख दे रहे हैं। तो माता जी हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थर्टीन राइट, सप्तर्षि पाल, সপ্তর্ষি চলে এসো। বর্ধমান থেকে এসে আজকে রাতে বর্ধমান ফিরে যাবে, ঠিক আছে? হরি বল। नेक्स्ट राहुल आचार्य, इंटर्नशिप में है राहुल, और कल्याणी मेडिकल कॉलेज से कनेक्टेड है। मायापुर भी आए थे हमारे यात्रा में, तो बहुत सिंसियर हैं। কত মালা করছে এভরিডে? নাম জপ প্রতিদিন হচ্ছে না, এক মালা এভরিডে? हाँ ठीक है, एक माला হচ্ছে তো। हरे कृष्णा, तो अभी अभी चालू हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट 16 हो गया, बोलना पड़ेगा। 16 हो गया ना अभी। 16 के बाद जितने लोग आज आए हैं, कौन कौन आए हैं 16 के बाद वाला लिस्ट में? वो ऑल आर देयर इसमें। व्हाट्सएप मुझे लगता है कि इसमें हम ही लोग हैं और कहीं नहीं, इसमें मन कर सकते हैं। वो करके चालू करते हैं, तो आपको पढ़ी ये प्रोजेक्शन में दिखाऊं 16 के बाद। अर्चिस्मिता आज आई नहीं ना, अर्चिस्मिता वाज आल्सो देयर। 16 में गया। ओके, तो 17 18 कृष्ण 19 20 21 22 22 चयन विश्वास, हरे कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आज चलो प्रभु जी सिंसियरली एवरी डे प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं। और কত আগে করতাম 8 মালা, তারপরে 1 মাস 4 মালা করছি, এখন একদম মানে কন্টিনিউয়াস করছি। ঠিক আছে, हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन आज से वेजिटेरियन फॉलो करते, एकादशी करता है। इतना मेडिकल कॉलेज में इतना सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल ही इज फॉलोइंग एकादशी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। कौन सा वाला चाहिए? ये वाला चाहिए, ये वाला कौन सा वाला चाहिए? बीच में। हरे कृष्णा, सर्टिफिकेट भी है सबके लिए, सर्टिफिकेट बाद में मिल रहा है। हरे ओके, नेक्स्ट डॉक्टर सोमनाथ घोष, उन्हीं तो आशन नहीं अपना नहीं दिए, अपना उन्हीं नहीं दे रहा, ठीक है। सोमनाथ घोष ही सबको लेके आए, मैडम को और शंकर को। तो ही वाज द मेन, तो रामपुर हार्ट मेडिकल कॉलेज। ओम का मत अनिल कौन है इसमें? श्रावणी, अद्रिजा, सौमिक, अनिर्बान, सौमी बर्मन, आशनी, शायनदीप अच्छा 36 दीपांजन साहा। हरे कृष्णा, हेलो। सर्टिफिकेट दे देना बाद में दे रहे। हरे कृष्णा। से हाँ हेलो, हरि बोल। नेक्स्ट इसके बाद कौन है? एक बार स्क्रीन दिखाओ। अनिमेश गोस्वामी, सातिका कुमारी, कुशलय, शुभ मंडल, देवरूप, अंतरा नहीं आ पाए अभी है। राजदीप पॉल, आ जाओ। हरे कृष्णा। मनोज देयर रूममेट TNM6। কোনটা চাই? এটা এটা কোনটা? এরা এই বছরের মানে ड्रेस আছে स्पेशल, যেটা व्यास पूजा, যেটা स्वामी महाराज दोनों ही व्यास पूजा का है। ये लास्ट ईयर का, इस साल का। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव की जय।
मायापुर के विग्रह हैं ये, आप लोग 50 तक, राइट? तो टॉप 50 तक हम लोगों ने, और कोई आया? और कोई अभी नहीं आया, ठीक है, लेकिन बाकी सबको आज मिलने वाला है। आज आप लोग जाने के पहले सबको जो लोग नहीं गए उनको भी हम कर जो नहीं आए उनको भी मिल जाएगा। हरे कृष्ण। तो थैंक्स अ लॉट। तो आप अच्छा, यहाँ पे कैमरा ऑफ हो गया था। हाँ, तो आज हम लोग काफी शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इधर आए और भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कृष्ण से जुड़ने का। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम लोग प्रसाद करेंगे, प्रसाद लेके फिर किसी का कुछ डाउट्स है, कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, प्रभु जी से पूछ सकते हैं। और कितने लोग चाहते हैं प्रभु जी बीच बीच में आए, आना चाहिए? हरी बोल। तो हम लोग सबको ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु जी आप थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि प्रभु जी बहुत यूथ प्रीचिंग इतने सालों से यूथ लोगों का प्रचार किए हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा समय दीजिए। कभी यात्रा अगर हमारा हो तो हमारी इच्छा है कि नेक्स्ट वृंदावन की एक यात्रा होनी है, মেডিকেল ব্যাচ, অনলি ফর মেডিকেল। লাস্ট টাইম আমাদের মায়াপুরে হয়েছে, ঠিক আছে? একটা স্পেশাল আমরা যাত্রা করতে চাইছি, তো সবাই যদি গ্রুপে কানেক্টেড থাকে সবাই জানতে পেরে যাবে। তো মোস্টলি অগাস্ট, এবার হয়তো সেকেন্ড প্রফের যারা আছে সবাই হয়তো আসতে পারবে না, বা সেকেন্ড প্রফের পরেই আসছে। फर्स्ट प्रॉफ वाले छोड़ के सब आ হ্যাঁ, ফার্স্ট প্রফের বাদে अक्टूबर का एग्जाम সেকেন্ড প্রফের এক্সাম হয়ে যাবে, তারপরে একটা আমরা ডেট ফিক্স করছি। চেষ্টা করো সবাই আসা, ঠিক আছে? फर्स्ट प्रॉफ वाले कभी कर देंगे আর না হয় জগন্নাথপুরি, যেটা হবে সেটা আমরা জানি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, শিল প্রভুপাদ কি, सारे भक्तवृंद की जय, मेडिकल बैच की, सारे मेडिकल कॉलेजेस की जय, दाई गौर प्रेमानंदे हरे। महाप्रसाद ये ऑफ कर देता हूँ, महाप्रसाद ये वाला महाप्रसाद। अच्छा, हम लोग प्रसाद